नमस्कार, I'm Ashok Vyas, and if I say that the most interesting thing about us, for us, is ourselves. We want to know more about ourselves, and that is why many of us find ourselves attracted towards astrology, or there is much more to astrology. What is Vedic astrology? We learn a little bit freshly from someone who found his calling from engineering background towards practicing, learning, and helping. And he's joining me from Dubai, very well known for some of his predictions, which were initially perceived कि ऐसा कैसे हो सकता है. सो वो एक चमत्कार जैसी उनकी एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्टिव जो है उससे निकल के आया. कार्तिक गौर जी हमारे साथ हैं. नमस्ते, स्वागत है आपका. नमस्ते अशोक जी, थैंक यू सो मच. नमस्ते टू व्यूवर्स. तो सामान्यतः ऐसा होता है कि हम एक जनरल परसेप्शन लेके चलते हैं कि विज्ञान जो है वो ये जो वैदिक विज्ञान कह दो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उससे थोड़ा परहेज रखता है, क्योंकि वो उसका अपना एक ढंग है सत्य तक पहुंचने का. आप इंजीनियर थे, मतलब बेसिकली साइंस बैकग्राउंड वाले थे, फिर आप कैसे एस्ट्रोलॉजी की तरफ आकर्षित हुए? अशोक जी, बहुत फनी स्टोरी है क्योंकि आई एम ओरिजिनली फ्रॉम सोमनाथ. तो मेरा जन्म सोमनाथ में हुआ है. बाप दादा वगैरह सारे कर्मकांड ज्योतिष वगैरह में थे. आई वॉज द ऑड वन आउट क्योंकि मुझे हर चीज में लॉजिक चाहिए था और मैं हमेशा कहता था कि डोंट टेल मी व्हाट टू डू, टेल मी व्हाई टू डू. तो ये जो वाई है ना वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड फनीली इनफ या सैडली इनफ या जो भी आप बोल रहे हो, my forefathers were not that good orators, or they were not able to give me that good enough logic to their argument. So then I started my engineering journey. मैंने बोला चलो यार ये ज्योतिष वोशिष एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ होता नहीं है. And like what many of you might be feeling कि यार it is all about hard work, आप मेहनत करो, and then that's the whole thing about it. Then as they say कि भाई जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, तो होगा कोई जन्मों का वादा. So I met my Gurudev and he said that what are you doing all this stuff? You are a Jyotishi from past life, and you have to supposed to learn, and more importantly you are supposed to teach and spread the knowledge. तो मैंने उस वक्त, मुझे याद है, मैंने जोकिंगली गुरुदेव से पूछा था कि डू यू थिंक आई विल बी एबल टू लर्न? तो उन्होंने मुस्कुरा के बोला था, लर्न? अरे तू आधी दुनिया को सिखाएगा. गुरुदेव आपके कौन, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या? और दुबई में उनसे मिलना हुआ या पहले से? नहीं. So my Jyotish lineage is from Odisha in Jagannath-puri. So our lineage goes back to 500 years old from Achyutananda Das, and so it's a very very ancient lineage जहाँ पे father teaches his son, son teaches his son. My Gurudev was the odd one out. उन्होंने सोचा कि यार whether I die with the knowledge or I pick a few students whom I consider as my kids and I'm going to teach. अच्छा, अभी इसमें धर्म संकट हो जाता है क्योंकि जिसको सच में ज्योतिष पता है उसको पता है कि भाई ज्योतिष कैन बी मिसयूज्ड आल्सो. And the knowledge at which he wanted and the level at which he wanted to teach, the knowledge can be misused. He knew it, because when you talk about Jaimini Sutras at the highest level, you are basically training what we call it as Raj Jyotishis. You are not training astrologers. जो राज ज्योतिषी होता है, they are a cut above. They are strategic advisors to the kings, to the decision makers. And आजकल के टाइम में काफी बार लोग मुझे पूछते हैं कि कार्तिक, what is your KRA, what is your key result area? And I always tell them that I help you make strategic decisions right more often than not. So अगर आप एक ओल्ड स्टाइल एक राजा का कोर्ट देख लो, तो राजा के कोर्ट में हमेशा एक उनका जो भी टीम था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होगा, एक मुंशी जी होंगे जो फाइनेंस देखते होंगे, एक उनका सेनापति होगा, एट द सेम टाइम एक ज्योतिषी भी होता था. सो फाइनली ही वुड टेक ऑल द एडवाइस एंड फाइनली ही विल गो बैक टू हिज राज ज्योतिषी कि लिसन, मेरे को तो मेरा फाइनेंस एडवाइजर बोल रहा है कि हमको टैक्सेस बढ़ाने चाहिए, आपको क्या लगता है? They would say that no, this is not a good time. The moment Jupiter transits to Taurus, it will come in trines to your moon. At that time, the taxes will be accepted much better.
या तो फिर सेनापति बोलता था कि आई थिंक द अटैक विल हैपन फ्रॉम द साउथ तो डायरेक्ट। आपकी बात से मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी का जो पोजीशन है वो ज्यादातर गवर्नमेंट में भी एक शायद क्रिएट कर देना चाहिए, यदि सचमुच में इसकी प्रामाणिकता, और आप निश्चित रूप से मानते हैं उसको प्रामाणिक। मैं वहां पर हूँ जहाँ मुझे पता नहीं है कि सचमुच कितना प्रभावी है। तो एक सवाल मेरा यह है कि एक तो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी होती है, दूसरा जैसे आप स्ट्रेटेजिक एडवाइस दे रहे हैं, तो जो घटना घटित होने वाली है उसको बदलने का भी कोई संकेत या ऐसा कोई रास्ता भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जो प्रैक्टिस करने वाले वो बता सकते हैं क्या? बिल्कुल। सी, व्हाट यू आर आस्किंग इज व्हाट पीपल जनरली से कर्मा वर्सेस फ्री विल। हम्म। इज एवरीथिंग प्री डेस्टाइन्ड, सब कुछ क्या लिखा हुआ होता है कि मनुष्य का भी कोई से होता है? तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई ह्यूमन लाइफ इज नॉट लाइक अ चैट जीपीटी और अ रोबोटिक लाइफ, राइट? इसका मैं सबसे सिंपल एग्जांपल दे सकता हूं महाभारत में। तो महाभारत में फाइनली व्हेन अर्जुन वेंट ओवर देयर एंड ही सॉ के यार सामने तो मेरे सारे गुरु खड़े हैं, मेरे भाई है, एंड ही स्टार्टेड हैविंग कोल्ड फीट। तो उन्होंने ठाकुर जी श्री कृष्ण को पूछा कि ठाकुर जी, आई कांट फाइट, दिस आर ऑल माय गुरुज एंड दिस आर ऑल माय पीपल, मैं इनको कैसे अटैक कर सकता हूँ? हाउ कैन आई यूज बो एंड एरो अगेंस्ट देम? So Thakur ji smartly said that, listen, based on your past life karmas or some prarabdha, you have come to Kurukshetra. What you do from now to the time you die is your Kriyaman karma, which will finally decide, whether you get a rebirth, whether you get a moksha, whether you get an upgrade. We are all in a loka which is called as Bhuloka. Bhuloka is governed by grahas. भूलोक के ऊपर होता है भूलोका, विच आर द नक्षत्र लेवल्स। सो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि भाई डायरेक्टली आप मोक्ष की टिकट मांग रहे हो, उससे अच्छा पहले रिक्वेस्ट करो कि यार गिव मी एन अपग्रेड एटलीस्ट, कि यार ग्रह के लेवल से एटलीस्ट मैं नक्षत्र के लेवल पे पहुंच जाऊं। तो द आंसर, सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट कर्मा इज like your weight. Karma is like your height, and your free will is like your weight. You can reduce your weight, but you can't change your height, so to say, after a certain point. गॉट इट। तो मैं थोड़ा अभी जो हमारा विश्व है उसकी तरफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की आंख लेकर अगर आता हूँ, तो अब कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो रिजाइन कर रहे हैं, और काफ़ी टेंशन इंडिया के बीच में, कनाडा के बीच में जो है ही है। फिर कनाडा के और अमेरिका के संबंधों में भी अब जब ट्रंप पुनः राष्ट्रपति के रूप में होंगे तो बदलने वाला है, भारत के साथ भी बदलने। आपका इंडिविजुअल्स को हेल्प करने के साथ साथ जो ये मेजर पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ भी विशेष ध्यान रहता है। आपको कैसा लगा जब जो बात आपने ट्रंप के लिए कही या मोदी जी के लिए कही वो जब सही उतर गई, तो एज अ प्रैक्टिसिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजर कार्तिक जी को अंदर से क्या फील हुआ, और उस प्रिडिक्शन के बारे में भी थोड़ा बताइए। या सो स्ट्रेट आंसर इज, कार्तिक को अंदर से क्या लगता है? आई ऑलवेज फील हैप्पी फॉर ज्योतिष। देखो, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि भाई कार्तिक गौर इज अ वेरी स्मॉल फ्लाई। और मैं हमेशा, जब लोग मुझे थोड़े चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि भैया वर्ल्ड के मैप में आप यूई को ढूंढ लो, मुश्किल से मिलेगा। हाँ, उसके अंदर आप दुबई को ढूंढ लो तो और मुश्किल से मिलेगा। उसके अंदर अगर आप मेरा घर ढूंढ लो तो और मुश्किल से मिलेगा। तो वाई शुड आई फील दैट आई एम समबडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आई एम सम ऋषि रीबॉर्न और सम पराशर रीबॉर्न और अ जैमिनी रीबॉर्न? जब चीज अच्छी जाती है, व्हेन प्रेडिक्शंस गो बुल्स आई, I only feel that this is a validation of our Vedic rishis. When they go wrong, I always tell people that, listen, we are in Kali Yuga. Kali Yuga mein, there is a lot of knowledge which has gone away because of the Muslim invaders, and jo bhi hua, we have lost libraries after libraries. For example, जो बृहद पराशर होरा शास्त्र जो आज 2 वॉल्यूम में अवेलेबल है, वो किसी जमाने में 6 वॉल्यूम में था। जो जैमिनी सूत्रस है, वो टू अ लार्ज एक्सटेंट दे वर अवेलेबल इन मेनी मेनी मोर वॉल्यूम्स। सो काफी नॉलेज हैज डिसअपियर्ड। मैं ये कहता हूं कि चलो ये भी एक भगवान की लीला ही होगी कि यार थोड़ा एक्साइटमेंट रहना चाहिए। सब कुछ अगर चैट जीपीटी की तरह या प्रोग्राम्ड होगा एक्सेल शीट की तरह, तो फिर मजा क्या है?
लेकिन यस, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि देखो डॉक्टर्स का भी अलग लेवल होता है, राइट? कोई एक डॉक्टर होता है जिसके पीछे 6 महीने की लाइन होती है, कि वेटिंग पीरियड 6 महीना 1 साल का भी होता है कई बार। क्यों? क्योंकि वो भी सेम लिपिड प्रोफाइल ही देख रहा है, वो भी सेम अपना रिपोर्ट्स ही देख रहा है, बट हिज एक्सपीरियंस एंड हिज इंटेलेक्ट इज लिटिल सुपीरियर, as a result of which he is able to help his clients, help his followers much better. Similarly for Jyotishi, I always say, for example, एक अगर मैं मोदी जी का एक प्रेडिक्शन फेमस बता दूं, तो मैंने 2012 में एक फेमस प्रेडिक्शन किया था, जो उस वक्त तो लोग मजाक करते थे। 2012 में जब मोदी जी वाज नॉट इवन बीजेपी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, उस वक्त मैंने बोला था कि भाई नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी इज गोइंग टू बी बीजेपी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, he is going to win, he is going to win with majority, and he is going to be a 3-time prime minister. So उस वक्त मेरे को लोगों ने बोला था, अरे यार कार्तिक तू गुजराती है, तू सोमनाथ से है, तो तू यार फेवर कर रहा है। मैंने बोला it doesn't work like that, because immediately after a few years I had made a prediction about Arvind Kejriwal also, that he is going to be a 3-time chief minister of Delhi, and I am not a fan of Arvind Kejriwal. So मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि भाई when you wear a professional's hat, it doesn't matter, the horoscope speaks, you don't get biased. इसलिए ज्योतिषी के लिए भी it is very important that they don't look at the horoscopes of their son, their close people, तो just like a आपके doctor doesn't do the operation. जी, आपकी इस बात से मैं टेम्प्टेड हो गया हूँ ये पूछने के लिए, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल को कैसे देखते हैं आप? I think Arvind Kejriwal is not coming back. अच्छा, Arvind Kejriwal is not coming back. तो ये जान के कई लोग खुश हुए होंगे, कुछ लोग शायद नहीं भी होंगे, लेकिन लेकिन हम जो विश्व शांति की बात करने वाले हैं उस तरफ बढ़ते हुए, जो ट्रम्प के आने से और किस तरह का राजनीतिक वातावरण आप देखते हैं, अमेरिका की बात कर लें और विश्व की, और विशेष करके भारत अमेरिका के संबंधों की बात करें? So definitely. So उसके पहले मैं एक बताना चाहता हूं कि I was amongst the very few, I would not say the only one, among the very few astrologers who 2 years back had predicted Trump will come back. And I had also said that Trump is going to come with two difficulties, where he is going to face huge problem from Jupiter and Rahu. Jupiter is the judiciary, Rahu is the deep state. And that exactly happened. In fact, I don't want to name the channel, but just 2 days before he was shot, I was in one of the YouTube channel. He is also from America. And I had said that, when Surya is going to enter Virgo, he needs to be very, very careful about his health. And he was shot exactly when Surya entered Virgo. And after that, I had given a famous prediction that his Aruda is associated with Moon. Or agar Donald Trump's team gets back and starts doing something related to food, or something related to food distribution, something like that, it would be very good for his image and it would shoot up his ratings. And they came up with McDonald campaign. Agar aapko yaad hoga, and everybody, especially in America, would know that campaign was a great asset for him. It really helped him in terms of the reach. It really helped him in terms of the vote swing. And then finally, he did come back, right? Now, I was very confident because I follow certain dashas which are not normal dashas. Normal astrologers को देखोगे तो आप विंशोत्तरी दशा ही यूज करते हैं. Whereas the way we are trained at a very different level. इसलिए मैं jokingly हमेशा कहता हूँ, I look at geopolitics from the lens of Geo Jyotish. And then that is called as Raj Jyotishi. Right? जो सेम चीज ही देख रहा है, सेम एक्सरे ही देख रहा है, सेम हॉरोस्कोप ही देख रहा है, बट वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज देख रहा है, जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स मिस कर जाते हैं क्योंकि दे आर एस्ट्रोलॉजर्स. तो जियो ज्योतिष कार्तिक गौड़ जी हमारे साथ हैं, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उनके साथ हम पूरे विश्व को एक साथ, विशेष करके जब नया बरस शुरू हुआ है तो 2025 में हम सभी हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए भाई सबके अंदर हार्मनी रहे और शांति रहे वगैरह. पर आप क्या देख रहे हैं, कैसा जाने वाला है 2025? 2025 is, if I might say it very, very openly and frankly, there is one transit which I am very, very keeping my fingers crossed. There are two things actually which is majorly happening. एक तो the transit of Jupiter to a sign called Gemini. मिथुन राशि में गुरु की transit होगी.
गुरु जेमिनाई में है ना, एक पोजीशन होता है जिसको मरण कारक स्थान बोलते हैं. लाइक जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल इन द थर्ड हाउस because the third house is the house of sexuality. Third house is the house of very, very big cities like New York, like Dubai. And why is Jupiter uncomfortable? Because everything is fake over there. Jupiter ko jana hai ninth house mein, because ninth house is the house of temple. That's why the natural ninth house is Sagittarius, which is the Mula Trikona or the office of Jupiter, because Jupiter likes over there. Whereas for Rahu, the ninth house is the Marana Karakasthana, because Rahu wants to have a wonderful night life. वो बोलता है यार मेरे को यार ये मंदिर में कहाँ पे लेके गए यार, मेरे को तो अभी पार्टी पे जाना है, आफ्टर पार्टी करनी है, आई वांट टू गो आउट क्लबिंग. You understand the logic? Now, the moment Jupiter is going to come to Mithuna Rashi, I see a huge conflict of religion, of faith, of diversity, which in a way is showing up. अगर आप देखो आपके यूएस में भी जो H1B वीजा या एक सटल लेवल पे इंडियंस के लिए जो चालू हो रहा है, that is going to go not only pan America, it is going to go pan world. And the nimittas were there just during the Christmas attack. What happened in Germany, and then what has happened even around New York, अमेरिका, न्यू ऑर्लिन्स में जो हुआ है, and it is only going to be growing much more, and that is going to start a huge pushback in terms of that religious conflict, and that is my one of the worry. जी. सो कार्तिक जी, जैसा मैं पहले आपसे कह रहा था, एक तो प्रिडिक्टिव है और एक प्रिवेंटिव के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ है, जिसे कहते हैं कोई उपाय, चाहे कोई इंडिविजुअल लेवल पर या कलेक्टिवली या कोई राष्ट्राध्यक्ष है, अगर आप उनके पर्सनल कंसल्टेंट हो और आपको कॉन्फिडेंट हो कि जैसे राजगुरु की राजा सुन लेते थे वैसे कोई आपकी बात सुनता हो, तो क्या सजेशन आपके होंगे? देखो, एक तो सजेशंस वुड डिपेंड ऑन मेनी अदर फैक्टर्स, राइट. काफी बार लोग मुझे पूछते हैं कि यार कार्तिक जी, बहुत मंदी का टाइम आने वाला है, रिसेशन होने वाला है, ओ इट्स सच अ बैड टाइम. तो मैं हंसते हंसते बोलता हूं कि लिसन, बिग मनी इज ऑलवेज मेड इन अ बैड इकोनॉमी. आप ट्रंप का भी अगर करियर रिकॉर्ड देख लोगे तो वो मंदी में ही कमाया है सबसे ज्यादा. एंड इट इज अ गोल्डन रूल अक्रॉस. आप वॉरेन बफेट से लेके किसी भी जो मल्टी मिलियनर बिलियनर होते हैं, they have always made big money in a bad economy. Now, there is no, see, that is the difference between astrology and Jyotish. Astrology is one size fits all. हाँ, आपने एक जो ह्यूमन रेस है उसको 12 पीस ऑफ पिज्जा में काट दिया कि यू आर बॉर्न बिटवीन दिस डेट टू दिस डेट, यू आर एन एरियन, आपके लिए 2025 अच्छा हो जाएगा. यू आर बॉर्न बिटवीन दिस डेट टू दिस डेट, यू आर ए टोरियन, आपके लिए ठीक ठीक होगा. जेमिनाई के लिए अच्छा होगा. Whereas ज्योतिष बोलता है कि even twins who are born at a difference of 5 minutes will have a completely different destiny. And in practice we see that is a fact of life. मेरे cousins है, they are twins. One is extremely brown and the sister is extremely white, almost looks like a Katrina Kaif. One is doing exceedingly well, one is doing average. So what am I trying to say? That process of cutting of umbilical cord, सी काफी बार हमको तो यही नहीं पता होता है हमारा बर्थ टाइम क्या है. हम तो अंदाजे से जाते हैं कि भाई हमको डॉक्टर ने बोला था सुबह 3:30 बजे का जन्म है या 6 बजे का जन्म था, अंदाजे से बोल देते हैं. जबकि हमारी परंपरा में तो हमको सिखाया गया है रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ टाइम, कि भाई नेवर एग्री टू व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग टू से. इसलिए पीपल हु हैव कंसल्टेड मी, दे वुड नो कि मेरा एक फॉर्म जाता है जिसमें I asked for few events of life. Okay, when did you get married? When did you shift to America? What happened? Few events, major events, based on which I rectify the horoscope. Because the horoscope has got 16 divisional charts. Sodasha Varga. These 16 Vargas are associated with 16 Kalas of Shri Krishna. That's why Shri Krishna is the avatar for Kali Yuga, not Shri Ram. आपकी कुछ बातें ऐसी लगती हैं जो हमारे सामान्य दर्शक जो हैं वो उनसे प्रभावित होंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगी. जैसे मुझे भी, क्योंकि टेक्निकल बात है, ऑफकोर्स आप उसमें एक्सपर्ट हैं. समय की सीमा को देखते हुए एक और बहुत सारी मेजर घटनाएं जो अभी जगत में हो रही हैं, उसमें से एक जो महाकुंभ हो रहा है, और ऐसे कहते हैं वो 144 साल के बाद में इस तरह की प्लानिटरी पोजीशन आई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए. और ये कहते हैं भाई इस तरह के अवसरों का लाभ लेना चाहिए, और इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से
क्योंकि एक मनुष्य कैसा रहता है वो भी वर्ल्ड पीस को कंट्रीब्यूट कहीं ना कहीं करता है किसी रूप में। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। महाकुंभ और ये प्लानिटरी पोजीशन क्या स्पेशल है जो 144 साल के बाद आई हैं, और इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या करना चाहिए? सो एक तो हमको समझना चाहिए, जो कुंभ है वो समुद्र मंथन था, राइट? बट सारे लोग तो उस समुद्र मंथन में जा नहीं सकते। चलो एट ए फिजिकल लेवल ऑल्सो कुंभ में सब लोग जा नहीं सकते। यूएस से कोई कहाँ जाएगा? कोई बिजी है, जा सकता है नहीं जा सकता, अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता है। बट वेर इज द चर्निंग हैपनिंग फॉर अ नॉर्मल पर्सन? इट इज इनसाइड। तो जो हमारा समुद्र मंथन है वो तो अंदर हो रहा है। सूर्य की आर्मी और असुर आर्मी, दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर। That churning is actually happening inside. And we are hoping that in that fight between Ram and Ravana, the Ram will win. And Ravana is also inside. तो जब हम मंथन की बात करते हैं, मंथन is nothing that samudra manthan is constantly happening in terms of our thoughts, in terms of our strategies, in terms of how fair we are in our life. तो जब तक वो फेयरनेस हो, एंड एवरी मॉर्निंग जब हम अपने आप को देखे आईने में और वी डोंट फील बैड कि यार आई एम डिटीरिएटिंग एज अ ह्यूमन बीइंग, आई थिंक वो चर्निंग अच्छा हो रहा है। उसमें से आप विष को निकाल के आप उसमें से कुछ अमृत ही दे रहे हो शांति के लिए, विश्व के लिए। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि वेर एवर यू आर, फॉर एग्जाम्पल आप लोग यू आर ऑल बेस्ड इन अमेरिका, आई एम बेस्ड इन यूएई फॉर, मेरे को 23 साल हो गए। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि देखो, जन्मभूमि और कर्मभूमि, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां के हो कर्मभूमि का, वहां का भी आपका बहुत बड़ा ऋण है। तो नेट नेट यू शुड बी अ कंट्रीब्यूटर। और ये कंट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज द बिगेस्ट अमृता दैट वी कैन गिव टू वेयर वी आर, एंड दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर थॉट, आवर माइंडसेट। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो सनातनी है उसका माइंडसेट ही डिफरेंट होता है, बिकॉज वी आर ब्रॉट अप विद द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वासुधैव कुटुंबकम। फॉर अस देयर इज नथिंग लाइक अदर्स। जो अभी प्रोपागेंडा में कास्ट सिस्टम ये वो बोलेंगे, दैट इज अ वर्ण सिस्टम, दैट वाज नेवर अ कास्ट सिस्टम। ये तो सारा मैनिपुलेट किया गया है बाय सर्टेन लॉबीज। सो डू गुड कर्मास, एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अमृत मंथन। मेडिटेट, दैट इज व्हाट आई वुड टेल टू एवरीबॉडी। अगर एक मेरे को आप सिंपल रेमेडी पूछोगे विच कैन बी अ टेक अवे फॉर योर व्यूअर्स, आई वुड से डू योर पंचदेवता पूजा डेली एंड मेडिटेट। दिस इज द बेसिक दैट यू कैन डू। अभी कोई पूछेगा पंचदेवता पूजा क्या होता है, ऑलवेज स्टार्ट विद द गुरु। इट इज ऑलवेज ओम गुरवे नमः फर्स्ट, आफ्टर दैट कम्स गणेशा, and after Ganesha comes Surya. After Surya you can do Devi, after that Vishnu, and in the end Shiva. Now that concept can change. If you are a Vaishnavite, then Vishnu should be the last and Shiva should come before that. If you are a Shaivite, then end with Shiva. So you can do that Panchadevata puja on a Shivlinga, you can do that Panchadevata puja on a simple Thakurji, Balakrishna, you can do with anybody. So whatever is your faith has to be in the end. But बहुत ही Ganesha has to सुंदर, be. बहुत ही सुंदर कार्तिक जी जिस तरह से समझाते हैं, तो ऐसा लगता है उनके पास एक ज्ञान का जो कोश है वो उसको बड़ी उदारता से हमारे साथ बांटते हैं। और भारत जैसा कहते हैं आप, भारत से बाहर कहीं भी होंगे, भारत आपके अंदर रहता ही रहता है। तो दुबई में जैसा आप महसूस कर रहे हैं, अमेरिका में भी हमें जो बहुत लोग उस तरह का महसूस करते हैं। और जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो कुछ एक बात है जो भारत की, जो हमको पूरे विश्व से कहीं ना कहीं ऐसे जोड़ती है अपनेपन के साथ में। तो उस अपनेपन की सुवास को लेते हुए हमारी बातचीत के समापन से पहले आप देख रहे होंगे, चाहे दुबई में भी और जो खबरें आती हैं भारत से, अमेरिका से, तो एक पारिवारिक दृष्टि से आपसी संबंधों का जो ताना-बाना है, वो बड़ा छिन्न-भिन्न सा हो गया लगता है। कहीं डिवोर्स की खबरें आ रही हैं, कहीं कोई आत्महत्या कर रहा है, तो सब अलग-अलग ग्रहों की स्थितियाँ होती होंगी। पर अगर कार्तिक गॉड कोई एक उपाय इन एडिशन टू जो आपने पंचदेव उपासना वाला बताया, जो कि समन्वय हार्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फैमिली लाइफ में जो कारगर सिद्ध हो, सबके लिए हो सकता हो, तो क्या आप संकेत देंगे? देखिए, इसके बारे में मैं इनफैक्ट जब न्यूयॉर्क आऊंगा, मेरा जो ट्रिप मैंने प्लान किया है 4 से 16 मार्च, आई एम गोइंग टू डू अ प्रॉपर टॉक शो ऑन दैट ऑल्सो।
बट एक बिग टेक अवे आई वुड से कि देखो इस जो कलयुग है उसका जो बेसिक ग्रंथ है वो भगवत गीता है। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आजकल के जो बच्चे लोग हैं उनको भी बोलता हूँ, रीड 1 पेज ऑफ गीता एटलीस्ट। इफ यू कैन रीड एटलीस्ट 1 पेज ऑफ गीता, चलो आपको पढ़ने का वो नहीं है तो कोई पॉडकास्ट पढ़ लिया। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ गुड डिस्कोर्सेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। हाँ, लिसन टू देम फॉर 15 मिनट्स एट द स्टार्ट ऑफ योर डे। आपका जो मन है, मन इज चंद्र। हाँ, मनस इज एसोसिएटेड विद चंद्र, एंड व्हाट इज योर वीकेस्ट प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड? इट इज द थॉट प्रोसेस। किसी का अपने दिल पे या दिमाग पे काबू ही नहीं है। द माइंड इज कॉन्स्टेंटली वेवरिंग। हाँ, आज सैमसंग का S24 प्लस ले लिया तो गूगल कर रहे हैं, अरे यार S25 कब आ रहा है? अरे अभी तक तो S24 के सारे फीचर्स भी हमने नहीं समझे। यू अंडरस्टैंड? सो दैट मनस, दैट माइंड इज कॉन्स्टेंटली वेवरिंग। सो टेक्निकली सोमनाथ कहाँ है? सोमनाथ थोड़ी गुजरात में है। सोमनाथ कैन बी इनसाइड यू ऑल्सो, provided you become that sthita pragna purush, you become that stability, and that Chandra is controlled as he is on the head of Shiva. So this is what I would say: control your mind, read a page of Gita, Bhagavad Gita, and your mind will automatically get into control. Do the Panchadevata puja, and really that would actually transform you 360 degrees. तो बहुत धन्यवाद कार्तिक जी। आपकी बातें सुनते हुए ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक आध्यात्मिक जागृत जो साधक है वो भी मुखरित हो जाता है, उससे भी और अधिक आनंद आता है। तो भगवत गीता का संदर्भ आपने लिया तो 12वें अध्याय का एक श्लोक अपने दर्शकों के साथ बांटते हुए, जिसमें प्रिय भक्त के बारे में बताते भगवान कहते सम शत्रु च मित्रई च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जित। तो बहुत सरल ढंग से ये कहा जाए तो कार्तिक जी के साथ मैं ये याद करूं कि भगवान हर स्थिति में सम रहने की जो बात करते हैं, जो कि आपने भी मन शीतल रहे उसकी तरफ संकेत दिया। और मुझे लगता है ये एक सार सूत्र है जिससे कि विश्व शांति की दिशा में हम लोग साथ साथ बढ़ सकते हैं। तो चलते चलते यदि संक्षेप में आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहें कार्तिक जी। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू बी देयर फ्रॉम March 4 to 16th, एज आई सेड, इन न्यूयॉर्क एंड DC, एंड इट वुड बी काइंड अशोक जी इफ यू कैन प्रोबेबली, या तो फिर मेरी वेबसाइट से वेबसाइट पता लगेगा। देख के रख रहे हो तो यू कैन गेट इन टच विथ माय टीम। देयर आर लॉट ऑफ मीट एंड ग्रीट इवेंट्स एंड अदर थिंग्स आई एम गोइंग टू डू। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आई वांट टू स्प्रेड दिस नॉलेज। एंड मेरा, अगर आप एक्स पे भी आप जाओगे तो मेरा एक जो ध्येय है वो यही है कि आई वांट टू ब्रिंग बैक अवर गुरुकुल सिस्टम बैक टू भारत। एक बार हमारा गुरुकुल सिस्टम भारत में आ गया तो फिर हमको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको विश्व गुरु बनना है। हम विश्व गुरु बन ही जाएंगे। तो फिर एक बार कार्तिक जी का धन्यवाद है और आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, नया बरस अभी नया है और हम अपने तौर पर इसको सुंदर और शांतिपूर्ण बनाने में जो कुछ कर सके कम से कम अपने साथ वो हम निश्चित रूप से करें, और कुछ जैसी घटनाक्रम होगी उसको श्रद्धा से स्वीकार करें। कार्तिक जी का आभार, आप सभी का पुनः पुनः मंगल कामनाओं के साथ आभार, अनुमति दें। नमस्कार। थैंक यू।